So vector algebra. So let's write vectors first. We know hundreds of physical quantities, right? We have studied in second chapter, that is units and measurements. So we know hundreds of physical quantities. Anything which can be quantified by its measurement is known as physical quantity. So we know hundreds of them. Out of those, some of the quantities don't require direction for their complete description or definition. And some of them require direction for their complete definition or description. Let's try to understand what does it mean. If you go to a shopkeeper and ask for 5 kg sugar, there are 2 kg sugar. So does he ask in which direction you want that sugar? Hello? No, sir. No. He simply measures 2 kg and gives it to you. If you ask 1 more kg, then will he ask in which direction? No. He understands what 3 kg implies, what mass is, right? So mass, to understand mass, I don't require any direction. Direction ka role hai hi nahi mass, right? Okay. Now, if I ask you to exert a force of 10 Newton on this block. If I ask you to exert force of 10 Newton on this block, what you will do? 10 Newton, you understand, huh? Do you have a feel of 10 Newton? What is 10 Newton? Hello? 10 Newton तो आपको समझता है ना? हाँ सर. The force which is required to raise or hold 1 kg mass is 10 Newton. ठीक है. तो 10 Newton आपको समझता है. मैं बोल रहा हूँ इसमें 10 Newton force लगाओ. So will you be able to? सर डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको. Yes. 10 Newton force आप लगा लोगे. 10 Newton आपको पता है 1 kg सबने उठाया. पता चला आप आके इधर लगा दिए. अरे मैंने बोला था ऊपर उठाने के लिए, आपने इधर लगा दिया. तो आपको क्या मालूम मैंने क्या मन में सोच रखा है? तो फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क इज सर इन विच डायरेक्शन. 10 Newton आई अंडरस्टैंड, मैं लगा दूंगा 10 Newton फोर्स, इतना मेरे मसल्स में है, बट किस डायरेक्शन में लगाना है? तो वन शुड ऑलवेज आस्क फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, बिकॉज अगर फोर्स आप राइट साइड लगा दोगे तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट. इफ यू प्रेस इट विद द फोर्स ऑफ 10 Newton, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. If you lift it with the force of 10 Newton, things will be different. So in every case, in every other direction, different direction, effect of that 10 Newton would be different. So one should always ask in which direction the force is to be applied. So mass ke liye we don't require any direction. Direction is not needed. Right, but here direction is must. Right, मुझे मालूम है ये सामने गोल है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है. If I kick it with a force of 100 Newton, गोल हो जाएगा. But direction तो देखनी पड़ेगी ना, गलत डायरेक्शन में किक कर दिया तो थोड़ी ना गोल हो जाएगा. Right, so force बिना डायरेक्शन के बस एक्सप्लेन किए, बिना डायरेक्शन डिस्क्राइब किए फोर्स समझना impossible है. You cannot understand effect of force unless and until you have direction. You know the direction of that force. So there are many quantities like mass जिसमें वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, डेंसिटी ले लो. डेंसिटी है तो है. कॉपर की डेंसिटी 9460 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो है, उससे डायरेक्शन से कोई लेन देन ही नहीं है. प्रेशर, atmospheric pressure is 10⁵ Pascal approximately. So it is. It's not like in any direction it is. Speed. मेरा speedometer दिखा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड. ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ उसको 5 मीटर पर सेकेंड, इधर जाऊंगा तो कुछ और दिखाएगा. It's not like that, right? So there are several quantities. There are several quantities which do not require direction for their complete description or definition. But simultaneously, there are many quantities which have directional sense. बिना डायरेक्शन स्पेसिफाई किए आप नहीं समझ पाओगे इसका इफेक्ट क्या होगा.
right? Yes, sir. Yes, sir. Sahil, mute your mic. परमानेंटली ऑन करके रखा हो तुमने? ओके, सो उसमें कौन सी क्वांटिटीज हैं? देयर आर मेनी क्वांटिटीज which do not require vectors for the complete direction for the complete description. Those quantities are known as scalar. Best example to understand is mass, length I'll use in last, mass, time, density, speed, distance traveled, refractive index, current, let's say voltage, work done, energy. There are many quantities which are scalars, and then again there are many quantities which require direction for the complete description. You cannot understand the effect of those quantities unless until you know direction along with its magnitude. Quantities in displacement, velocity, acceleration, force, momentum, and there are many, right? So there are many quantities which have magnitude as well as direction. Those quantities are known as vectors. Now, वैसे तो आपको कभी देख के फर्स्ट टाइम में समझेगा नहीं कि दिस क्वांटिटी इज वेक्टर और दिस इज स्केलर अनलेस अंटिल यू स्टडी अ लॉट अबाउट दैट क्वांटिटी. तब आपको धीरे धीरे सेंस डेवलप होगा. हाँ है, अगर मुझे ये नहीं पता, डायरेक्शन नहीं समझेगी तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा ये क्या करेगा. सो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब पढ़ते पढ़ते आपके सिलेबस में इतना कुछ लिखा उसके बारे में कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद दिस scalar or a vector. But कुछ बड़ी confusing quantities है. For example, length. If I ask you length is a scalar or vector? क्या होता है length? Length is a scalar or length is a vector? The scalar. Scalar. If I ask you, what about displacement? Vector. Displacement is a vector, and displacement is also a length, na? Or it's not a length. Sir, displacement short. बेटा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसमें डायरेक्शनल सेंस होता है. राइट साइड जाता है तो वी से प्लस, लेफ्ट साइड इज माइनस. यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा अजीब सा होगा, डेल्टा आर वेक्टर लिखेंगे. इफ यू ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर समवेयर तो इसको आप देखो, डेल्टा आर वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है. डिस्प्लेसमेंट एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, करेक्ट, बट उसमें डायरेक्शन भी होती है. और मैंने बताई भी थी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन. अगर you land somewhere on the right side of the starting point, then your displacement is said to be positive in one dimension. बोलो. तो लेंथ क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? तो लेंथ मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड करता है कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहा है. मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग दैट डेफिनेशन. लेंथ कैन बी स्केलर एज वेल एज इट कैन बी वेक्टर. Length is a scalar, simultaneously it is a, not simultaneously, I'll say it depends on in which context you are using definition. Distance traveled and displacement in parallel, if you see the two quantities, so distance traveled is a true scalar and displacement is a vector quantity. Getting it? Yes, sir. Hello? हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही. आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ सर. सो लेंथ क्या हो गया? मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कभी स्केलर कभी वेक्टर, जब जैसी जरूरत पड़े. ठीक है, चलो भाई एरिया की बात करते हैं. एरिया क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? Area is a scalar or a vector?
दिस इज अगेन मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कभी स्केलर है, कभी वेक्टर है। हाँ, अभी स्टार्टिंग के टॉपिक्स में तो आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आने वाले टॉपिक्स में फिजिक्स में भी एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा आपको। हाँ, मैथ्स में भी आपको 12th में मिलेगा एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, सो फिजिक्स में मिलेगा बट थोड़ा लेट मिलेगा। क्वेश्चन है कि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी पहले बोलने की जरूरत क्या पड़ी? तो आई विल एक्सप्लेन दैट। सपोज विंड ब्लो हो रही है, विंड ब्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। इफ आई होल्ड, इतना छोटा सा बुक नहीं लेके बड़ा सा बुक होता है, ऐसा मैं अगर होल्ड करूंगा तो मेरे ऊपर इस बोर्ड के ऊपर कुछ या इस बुक के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। विंड ऐसा आ रहा है, ऐसा होल्ड किया तो कुछ फोर्स लगेगा। हेलो, एक आवाज नहीं आ रही भाई। यूजली आई क्लोज, मतलब क्लास ही बंद कर देता हूँ अगर ऐसा होगा। हेलो, यस सर। तो बेटा रिस्पॉन्ड तो करते रहो, क्या कुछ बात हो रही, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इधर से विंड आ रहा है, तो इफ यू होल्ड दिस बुक तो इस पे कोई फोर्स लगेगा? यस लगेगा। अगर मैं इसको इंक्लाइन कर दूं तो फोर्स लगेगा? ऐसा इंक्लाइन करिए, क्रॉस कर दिया, हाँ लगेगा। हाँ सर, लगेगा। सेम लगेगा या कम ज्यादा लगेगा? कम सर सर। कम लगेगा। तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है ना, एरिया की डायरेक्शन कभी कभी जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली इट इज मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपके डैड से पूछोगे, डैड हमारे घर का जो पेपर है उसमें जो लैंड है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, या जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या डायरेक्शन दी हुई है वेक्टर क्वांटिटी का? नहीं, वो डायरेक्ट सिर्फ एरिया दिया हुआ है। नहीं, 100 स्क्वायर मीटर है। आपके घर का जो कारपेट एरिया है वो वेक्टर डेफिनेशन में नहीं लिखा होगा, वो स्केलर डेफिनेशन ही है। बट यस, वी नीड डायरेक्शन ऑफ एरिया समटाइम। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ये एरिया है, जैसे एरिया, इसमें इसकी कौन सी डायरेक्शन लोगे आप? ये एरिया है ना, इसमें एरिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया? इस एरिया की क्या डायरेक्शन है? इसमें तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, मैं इसमें से किसी को भी एरिया का डायरेक्शन नहीं ले सकता। फिर कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अगर ये एक सरफेस है, मैं इस नॉर्मल को उसका डायरेक्शन बोलता हूँ। अगर नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उस एरिया का इंक्लिनेशन या ओरिएंटेशन या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो डायरेक्शन ऑफ एरिया जब भी जरूरत पड़ेगी, I'll take normal, direction of normal drawn to the area as the direction of area. I'll repeat, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी एरिया वेक्टर की, तो मैं डायरेक्शन क्या लूंगा? डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। सो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। तो ये हो गया आपका एरिया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन, ऐसे तो बहुत सारी मिलेंगी आगे हायर सिलेबस में, बट यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग। करंट। करंट क्या होगा? करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर? करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। आपका इंस्टिंक्ट क्या बोलता है? व्हाट डज योर इंस्टिंक्ट से? सर वेक्टर। इंस्टिंक्ट से तो सीधा सीधा वेक्टर नजर आता है। क्यों? मैं बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, 10th में तो हमने पढ़ा था अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसका सराउंडिंग में इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो वेक्टर तो लग रहा है, एकदम क्लियर वेक्टर दिख रहा है, बट टू योर सरप्राइज दिस इज अ ट्रू स्केलर। ये तो मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, दिस इज अ ट्रू स्केलर। इसमें वेक्टर वाली कोई बात नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर ये तो पूरी डेफिनेशन ही आपने गलत लिखा दी। डेफिनेशन गलत नहीं है एक्चुअली। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव डायरेक्शन as well as magnitude as well as direction are not vectors. कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है
उनके लिए पूरा अलजेब्रा बनाओ, वी कॉल इट वेक्टर अलजेब्रा। तो जैसे फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 न्यूटन लग रहा है और इधर 5 न्यूटन लग रहा है, व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है, सबको पता है राइट। हमारे बचपन से खेल रहे हैं हम लोग, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा। करंट में अगर 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, इधर पे कितना जाएगा? 10 एम्पियर। तो इसमें तो आपने अंदर से बोल दिया 10 एम्पियर, तो इसमें तो फिर वो स्केलर एडिशन वाली कुछ बात ही, वेक्टर एडिशन वाली कुछ बात ही नहीं रही ना। वेक्टर्स का बिहेवियर कुछ और होता है, वेक्टर्स का बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर अलग है नहीं। सो ये बात है कि करंट इज अ ट्रू स्केलर, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है उसको वेक्टर होना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर अ क्वांटिटी टू बी वेक्टर इट शुड सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर का प्रॉपर अलजेब्रा है, जैसे आपको बचपन से सिखाया है स्केलर्स को कैसे ऐड करते हैं, 2 + 2 4 कैसे होता है, 2 + 3 5 कैसे होता है। यहाँ पे आपको मालूम चलेगा 2 + 3 5 नहीं होता है। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरा 3 है, दोनों को ऐड करोगे तो 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 और 5 के बीच। तो इनके लिए प्रॉपर अलजेब्रा ही अलग है, इसके लिए वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका अलग है, मल्टीप्लाई करने का अलग है। यहाँ पे स्केलर में 2 3 6 होता है, यहाँ पे दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 2 और 3, उनको मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो मल्टीप्लाई बोलना ही गलत होता है वेक्टर्स में, बट उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो जरूरी नहीं 6 आए। वेक्टर्स में 2 और 3 का प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रेंज। आगे बात समझ में? यस तो सर। वो क्वांटिटी जो वो सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो ये तो फिर ये वाली बात होगी कि सर हमको तो देख के समझेगा ही नहीं कि स्केलर की वेक्टर, बिल्कुल नहीं समझेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए जब उस क्वांटिटी के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तब आपका अंदर से आवाज आएगी, नहीं यार दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज नॉट अ स्केलर, दिस मस्ट बी अ वेक्टर, ऐसी आवाजें आने लगेंगी। चलो ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट अ फील ऑफ व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? आया थोड़ा बहुत समझ में कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो ना, अब स्केलर्स को हम लोग आगे बढ़ा, वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो नेमिंग ऑफ वेक्टर्स, हाउ डू वी नेम वेक्टर्स? नेमिंग ऑफ वेक्टर्स, जैसे if I have a triangle ABC, if I have a triangle ABC, so AB is what? AB is a length, it's a scalar quantity, we used to denote it by AB. हम बोलते थे यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका मास m है, तो m is notation for mass. So ऐसे हम डिस्क्राइब करते थे या एक्सप्रेस करते थे scalar quantities, right? Now question is, how do we name vector quantities? Is there any special method or we can name them as scalars? So no, there are special methods for naming vectors. The first of them is 2 capital alphabets and an arrow over it. Good. The first method is the 2 capital alphabets and an arrow over it, like AB an arrow, या फिर PQ an arrow,